एक उम्मीद का दरिया हूँ, कश्ती हूँ, किनारा हूँ। दिन में सूरज, रात में चांद, वो आकाश तुम्हारा हूँ। जंग सा हूँ और प्यारा भी, जीता कभी तो हारा भी हूँ। मंजिल पाने निकला हूँ, एक राही आवारा हूँ। जज्बातों के बागों में पल पल महकती एक धारा हूँ। एक उम्मीद का दरिया हूँ, कश्ती हूँ, किनारा हूँ। Namaste, Sat Sri Akal, Adab, and good morning, India. Welcome to our channel Offbeat Traveling. So guys, before we start, I would like to request you to please subscribe, like and share our channel if you enjoy and find useful to yourself. So जैसा कि आपने पहले देखा कि मैंने पहले सोलो ट्रैवल किया है and discovered many new offbeat locations and also learned many things about trekking and camping. लेकिन इस बार वी ज्वाइंड अ ग्रुप इन आगरा नेम्ड एज आगरा ट्रेकर्स. यू कैन फाइंड द डिटेल्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो चलिए इस वीडियो में हम आपको लेकर चलते हैं रूपकुंड, जिसका एलिवेशन अप्रॉक्सीमेटली 16,500 फुट है एंड बेस कैंप वान में है. प्लीज डोंट कंफ्यूज इट विद वुहान इन चाइना. इट्स वान, जो कि लोअर जंग के पास है और ये उत्तराखंड में लोकेटेड है. और ये आगरा से लगभग 560 किलोमीटर की दूरी पर है, 560 किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेटली. सो ये ट्रैक हमने टोटल 5 दिन में कवर किया एंड द टोटल डिस्टेंस ऑफ दिस ट्रैक वाज अराउंड 60 किलोमीटर्स एंड वी स्टार्टेड आवर ट्रैक एट द एलिवेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 7,000 फीट इन वन एंड वी समहाउ मैनेज्ड टू टच द एलिवेशन ऑफ 15,500 फीट. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट. काफिरा तो चल दिया इस सफर के संग. काफिरा तो चल दिया इस सफर के संग. मंजिलें ना डोर कोई लेके अपना रंग. रहूं मैं मलंग मलंग मलंग. रहूं मैं मलंग मलंग मलंग. रहूं मैं मलंग मलंग मलंग. मैं मलंग है रे. ये भटकता मन, मैं बैरागी साजी हूँ. ये भटकता मन अब कहाँ ले जाएगा ये आवारापन. रहूं मैं मलंग मलंग मलंग. रहूं मैं मलंग मलंग मलंग. रहूं मैं मलंग मलंग मलंग. मैं मलंग है रे. नसीबों में सफर तो मैं कहीं भी क्यों रुकूं.
सफर तो मैं कहीं भी क्यों रुकूं, छोड़ के आया किनारे बह सकूं जितना बाहूं, दिन गुजरते So guys, हमारा सफर 10 जून 2021 शाम 8 बजे आगरा से शुरू हुआ and we reached Van on 11th of June at near about 9 p.m. and stayed in a homestay. Although we can also start this trek from Lohajang, but due to some lockdown conditions and for better accumulation, we decided to start this trek from Van to Didna. If we start this trek from Lohajang, trek route passes from Didna village, where we can find some homestay options, and if we start from Van, trek route passes from Gary Patel. But we decided to pass Didna village from Van, so that we can be more accumulate. Day 1, 12th of June 2021, Van to Didna. We started our trek from Van to Didna, which is approximately 7 kilometers at the elevation of approximately 8,200 feet. We reached at 2:30 p.m. approximately and stayed in homestay at Didna. It's a nice place with a homely environment, and you do not need to put the camps because you have option to stay in a homestay. Day 2, 13th of June 2021, Didna to Ali Bugyal. This day was our first toughest day because many of us, including me, was very new to trek in such conditions. Our trek starts from Didna to Ali Bugyal, and the trek was 11 kilometers approximately, having 90% ascent at the elevation of 11,000 feet approximately. We reached the campsite at 5 p.m. without having any lunch. So let me bring something important about Ali Bugyal. When we start trekking from Didna, after 7 to 8 kilometers approximately of trek, the tree line ended up between the Ali Bugyal range. That shows you are on the right path. Mahananda Devi temple is the self-locator of Ali Bugyal campsite. Green fiber huts are visible from far away to locate the campsite. Also please remember, green fiber huts are permanently located over there and had good water resources nearby and is open for everyone. But one should clean the area by himself according to his or her need. Please mind. बनता गया बस रास्ता, राही मिले जहां भी पगले मनमोजी जो बढ़ता गया बस कारवां। मेरी सुनेगा तो अगले शनिचर को पार लगेगी नैया। शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी, बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। कल पे सवाल है, जीना फिलहाल है,
फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे। ओ, 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 इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। हेलो गाइस, अली बुग्याल रेंज पहुंच चुके हैं। व्यू देखिए यहाँ से, हाइट है यहाँ से लगभग 13,000 फुट की। 2.5 किलोमीटर आगे यहाँ से अभी हमारी कैंप साइट होगी और हमें उस पहाड़ को पार करके अभी कैंप साइट पर जाना है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आज दूसरा दिन है हमारी ट्रैकिंग का। अभी 3 दिन और है, समिट हम चौथे दिन कवर करेंगे। सो गाइज, आज रात की कैंपिंग के कुछ वीडियो शूट करूँगा इस एपिसोड में, फिर इसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मिलूँगा। प्लीज़ अगर आप एंजॉय करते हैं वीडियो को तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। तुझको मैं रख लूं वहाँ जहाँ पे कहीं है मेरा यकीन। मैं जो तेरा ना हुआ किसी का नहीं, किसी का नहीं। ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं। बेगानी है ये बागी हवाएं हवाएं, ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं। ले जाए जाने कहाँ, ना मुझको खबर ना तुझको पता। Hi again. How are you feeling, guys? Because I'm exhausted. लेकिन एट लास्ट हम पहुंच गए हैं पूरा हमारा कैंप, जहाँ कैंप करने वाले हैं। और वो आपको जो बादल दिख रहे हैं उसके पीछे अभी पहाड़ दिख रहा था, लेकिन अभी पूरा होने की वजह से ढक गया है। इसके पीछे एक पहाड़ है, उसको छोड़ के फिर वापस उधर होता है। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर करने का हम वहाँ पहुँच जाएंगे एट लास्ट। सो गुड लक अगेन फॉर मी। थैंक यू। बनाती है जो तू वो यादें जाने संग मेरे कब तक चले, इन्हीं में तो मेरी सुबह भी ढले शाम ढले मौसम ढले। ख्यालों का शहर तू जाने तेरे होने से ही आबाद है। हवाएं हक में वही है आते जाते जो तेरा नाम ले देती है जो सदाएं। हवाएं हवाएं न जाने क्या बताएं, हवाएं हवाएं ले जाए तुझे कहाँ। हवाएं हवाएं ले जाए मुझे कहाँ। हवाएं हवाएं ले जाए जाने कहाँ, ना मुझको खबर ना तुझको पता।
सा फसाना, किसी को पता ना इसे क्या सुनाना। चल पड़े हैं जो हम, अब कैसा बहाना इसे है निभाना। ये सफर है नया, क्या से क्या हो गया, आगे क्या है आना। बेखबर मैं यहाँ, बेफिक्र है जहाँ, किससे क्या बताना कि दिल मेरा। हाय, गुड मॉर्निंग, दिस इज दीपक गोयल अगेन। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, मैं आपसे जिक्र करना भूल गया अपने डिस्क्रिप्शन में। जो मैं सामने बोल रहा हूँ, ये मेरे पीछे नंदा देवी टेम्पल है, जो कि वहाँ का बहुत रिलीजियस और बहुत मान्यता प्राप्त मंदिर है। और यहाँ पर माथा टेक कर ही लोग आगे बढ़ते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। और मैं अपने डिस्कशन में इसके बारे में बताना भूल गया, इसके लिए मुझे प्लीज़ माफ़ कीजिए। डे आफ्टर टुमारो वी विल ट्राई टू रीच ऑन द समिट एंड जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग ग्रुप में आए हैं। सारे लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत ही केयरिंग हैं। तो कभी भी अगर हमें किसी से ग्रुप के साथ मिलना है तो उनको जरूर ज्वाइन करें। मैं आपको मिलवा चुका हूँ, कमल दादा, अजय जी। ये हमारा ट्रैक का रास्ता है। दादा वो कौन सी हिल बताइए आपने? चौखंबा। ये चौखंबा हिल है, चौखंबा पीक, सॉरी। और ये भी would be crossing this Alibugya, we would be entering Bethlehemugya. So this is ऐसे करके बताएगी ना, ये Alibugya है, on my left, on my right is Bethlehemugya. ठीक है। On the left, it's Alibugya. And now we will be crossing Bethlehemugya towards Pathanachni. Okay, wish us luck. इस सफर की वजह है ये फर्ज या सजा, ये मैंने जाना है कहाँ कि दिल मेरा। Day 3, 14th of June, Alibugya to Patanachoni. We started a trek of 8 kilometers approximately at 8:30 a.m. from Alibugya and reached Patanachoni, our base camp for summit, at around 2:30 p.m. at the elevation of 12,700 feet. This day was one of the most beautiful day because we never tired once in the whole trek today, and it was just because of those scenic views around the whole trek. You can see Bednikund on your left while trekking towards Patanachoni. Again, it is a sign that you are on a right track. Although Bhavavasa is a base camp for reaching Rupkund, but we started our summit from Patanachoni because few of our group members hit AMS and we can't afford to split in two teams in those conditions. So we just choose to start from Patanachoni itself. और ये हमारे साथ हैं शुभम द डॉन। भाई के साथ सफर का पता नहीं चला। Hello, my name is Shubham Varshney and man, Deepak sir are on a journey to our Rupkund track. So, hope so when we will reach. But the track is so awesome. You guys have to do it once in life. रेडी। चार निकल गई, 3 दिन से चलते चलते। मैंने थोड़ा सा नमक ले रखा है अपने पजामों पे, भूख लगेगी नमक डाल के खा ले, कोई दिक्कत नहीं है। आ गए हमारे छोटे डॉन, आ गए छोटे डॉन आ गए। माउंटेन बॉय। भाई का इंट्रोडक्शन तो दो। भाई आओ ना, कुछ बताओ ना। तुषार भाई। हम आगे चलते चलते इतना बड़ा 20 किलो का हमने आगे एक बैग टांगा हुआ है, 20 किलो का पीछे टांगा हुआ है। समिट पर जा रहे हैं, देखते हैं 2-4 किलो छोड़ कर आएंगे। राइट। तो तुषार भाई आप करते क्या हैं? मैं स्कूबा डाइवर हूँ। ओहो। कभी पानी के अंदर, कभी धरती के ऊपर, यही काम है हमारा। भाई हमारा धरती के ऊपर रहता तो हम भाई के पास जाते हैं। वेरी गुड वेरी गुड।
तो दोस्तों ये तुषार भाई और छोटा डॉन से तो आप मिल ही चुके हैं। डोनाल्ड डक। अजय भाई हाँ भाई। है हाय। कल से आई नहीं बोला आपने। हाय लंबा वाला हाय। कहाँ पहुँच गए अजय भाई? हाँ मनार रोड ही पहुँच गए। अच्छा ओके ये मनार रोड ही है। वेरी गुड, बहुत अच्छी सराउंडिंग है। दोबारा से शॉट लेना है। आपका नाम क्या है? थान से थान से? थान का क्या मतलब होता है? तो कपड़ों के थान होते हैं। कपड़ों के थान? कपड़ों के थान, थान में से काट दे भाई 2 मीटर। गाइस ये चचा है हमारे ग्रुप के, अब ये जगत चचा हो गए हैं। एक थान वो होते हैं जिनकी पूजा करते हैं। अच्छा भगवान देवता, घर के देवता। देवता? देवता। अरे प्रभु हमसे कोई गलती हो गई तो माफ कर देना। कट। You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now? Atlantis, under the sea, under the sea. Where are you now? Another dream. The monsters running wild inside of me. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. These shallow waters never met what I needed. I'm letting go a deeper dive. Eternal silence of the sea. I'm breathing alive. Where are you now? Where are you now? Under the bright but faded lights, you set my heart on fire. Where are you now? क्या क्या क्या? यहाँ पर पार्टी चल रही थी, हाँ महानंद देवी ने कहा मत करो, हाँ वो लोग नहीं माने, हाँ। तो उन्होंने कुंड बना के उनको उसमें समा दिया, इसलिए ये पताल नचनी से बन के पताल नचनी हो गया। ये सही है मजाक? हाँ हाँ, सही है। और मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। अच्छा वेरी गुड मैं। भाई दोस्ती में लगा हुआ। क्या लेगा? Where are you now? Another dream. The monsters running wild inside of me. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. इनसे मिलिए, सॉरी, इनसे मिलिए, ये डॉक्टर एस लोधी। नमस्कार सर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आगे ये बताएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ट्रैकिंग बहुत ही एडवेंचरस गेम तो नहीं कह सकते, लेकिन एडवेंचर शौक है। तो दीपक भाई भी इसी एडवेंचर शौक में आज सब लोगों के साथ आए हुए हैं और इन्होंने कदम से कदम ताल मिलाते हुए इतने इस खूबसूरत वादियों के फ़ोटो इन्होंने जो लिए हैं और वो देखते ही बनते हैं ये नज़ारे। तो आई होप, हम आशा करते हैं कि आप भी ट्रैकिंग करिए और अपने मोटिवेशन को एक हाई लेवल पे लेके चलिए।
तो आशा करते हैं भविष्य में ट्रैकिंग करके काफ़ी लोग आगे बढ़ेंगे। तो दादा रूपकुंड के बारे में कुछ बताएंगे? देखो रूपकुंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक स्केलेटल झील है। स्केलेटल झील इसलिए बोलते हैं कि वो नर कंकाल का मतलब उसमें चाहे बच्चे के भी कंकाल हैं, उसमें 1,000 साल पुरानी कहानियाँ हैं। 1,000 तो कार्बन डेटा पद्धति होती है जो साइंटिस्ट की, तो उससे ये पता लगाया जा सकता है कि जो लोग वहाँ जो हड्डियाँ पड़ी हुई हैं कि उनकी कितनी एज है, कितनी कद काटी रही है। तो कुछ 500 साल पुराने स्केलेटन हैं, कुछ 1,000 साल पुराने हैं। अभी हमारी नई रिसर्च आई है बेंगलोर की साइंस के इंस्टीट्यूट की, तो उन्होंने कहा है इसमें कुछ बच्चे भी इन्वॉल्व रहे हैं। अच्छा। तो कुछ ग्रामीण लोग हैं वहाँ के, तो उनकी भी एक अपनी पारंपरिक कहानियाँ भी बनी हुई हैं। स्केलेटन डॉक्टर साहब किसके कहे जा सकते हैं, मतलब कितने साल पुराने हो सकते हैं और कौन किसके हो सकते हैं? देखो स्केलेटन की अभी तक अब बहुत सारी कहानियाँ हैं। साइंटिस्ट अलग कुछ कहते हैं, लोकल के लोग अलग कुछ कहते हैं। लोकल लोग ये कहते हैं कि राजा महाराजा अपनी सेना के साथ आ रहे थे मौज मस्ती करते हुए, तो महानंदा जो देवी थी तो उनको बहुत बुरा लगा कि ये धार्मिक, क्योंकि जब भगवान शिव और महानंदा देवी जो माँ पार्वती के नाम से जानी जाती हैं जब साथ साथ जा रहे थे, जब उनको रास्ते में प्यास लगी तो भगवान शिव ने त्रिशूल मार करके वहाँ पे झील का निर्माण किया। उस झील से उन्होंने प्यास बुझाई। जब उन्होंने देखा महानंदा देवी जी ने कि मेरा जो चेहरा है इस नदी के अंदर इतना सुंदर लग रहा है, तो धीमे धीमे उसका नाम रूपकुंड पड़ गया। तो ये इस तरह की कहानियाँ प्रचलित हैं। और उनको जब लगा राजा महाराजा अपनी सेनाओं के साथ आ रहे हैं, उनकी जो रानी थी उनका वहाँ प्रसव हो गया, तो उसकी वजह से उनको बहुत गुस्सा आया महानंदा देवी जी को, और उन्होंने वहाँ पे ऐसा कुछ किया शक्तियों से, जो वहाँ तूफान आ गया और जो लोग थे वहीं के वहीं दफन हो गए। और उन्हीं के अवशेष आज भी पड़े हुए हैं। वहाँ टेम्परेचर इतना ज़्यादा लो है कि आज भी उनकी जो बोन्स हैं उन पे आप मसल्स देख सकते हैं। अगर हम हो सकता है हम अभी जाएँ वहाँ, तो अगर वहाँ आइस नहीं मिलती है, तो आइस अगर नहीं मिलती है तो वो स्केलेटन बाहर आ जाते हैं, नहीं तो अदरवाइज आइस के अंदर वो दब जाते हैं, तो हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो आशा करते हैं कि हमें भी ये दृश्य मिले देखने को, क्योंकि ट्रैक के बारे में कुछ बताइए, ट्रैक कैसा लगा? ट्रैक तो एडवेंचरस तो है ही, इतनी करीब 16,000 फीट की हाइट पे है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी तो रहती है। फिर भी लोग अपने जितना भी इन लोगों का जो लंग्स की कैपेसिटी है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लंग्स, तो इसकी वजह से कोई लोग रनिंग करते हैं, कोई साइकिलिंग करते हैं, तो सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। तो उसी हिसाब से लोग अपने धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं। कोशिश करते हैं जितने लोग हमारी टीम में आए वो सारे लोग उस ट्रैक को, उस डेस्टिनेशन को वहाँ तक पहुँचे, तो सभी के लिए बहुत ही यादगार पल होंगे ये सारे। इसी के साथ मैं विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। संत आदमी है। खाने में क्या डिमांड रखते हैं आप? कुछ भी नहीं, जो मिल जाए। नहीं, कुछ अच्छा सा टेस्टी कुछ बोल रहे थे ना अभी आप? कुछ भी मिले पर टेस्टी मिले, मतलब थोड़ा टेस्ट। जैसे कि कढ़ाई पनीर? कढ़ाई पनीर तो आपने थोड़ा ऐसा थोड़ी छोटी लेवल की बात करती है। छोटी लेवल? पनीर 2 प्याजा मिलना चाहिए। पनीर 2 प्याजा, ओके। तो साथ में फिर गार्लिक नान या स्टफ नान क्या पसंद करेंगे? गार्लिक नान, लच्छा पराठा हो जाए तो मजा। वैसे खाने की बहुत याद है। तो कुछ बताएंगे आप? क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ये लाइफ जीने का मन था कि जीवन में एक बार इस तरह की एडवेंचर करना है, बट आगे अगर मौका लगा तो करूँगा, लेकिन छोटा ट्रिप करूँगा, इतना बड़ा ट्रिप नहीं। लोगों को मोटिवेट करने के लिए बताइए कि आप किस हालातों में आए हैं हेल्थ को लेकर। मुझे उम्मीद नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, लेकिन डिटरमाइंड किया हुआ था, और ये भी नहीं पता था कि इतना हार्ड ट्रैक होगा, पूरा रूट इतना मुश्किलों भरा होगा, लेकिन आकर के अच्छा लगा। कहीं कहीं पे मन डोला भी कि वापस चला आऊं, मेरा तंडोला, मेरा इन ऑल बढ़िया रहा। ये तो चाहिए मेरा तंडोला, मेरा राइज भाई। क्या अजय भाई कह रहे थे क्या? इसके अंदर क्या बोलना है? कबूल है, हमें पर्दा डाला हुआ है। बोल। झरना बहुत अच्छा बह रहा है, वहाँ चलिए शॉट लेते हैं। अच्छा चल। चाचा थोड़ी देर रिलैक्स, थकते हैं बहुत। वही घुटना लेफ्ट दर्द कर रहा है। Day 4, 15th of June 2021. Roopkund summit via Bagwawasa and back to Patanacholi.
That was 18 kilometers return trek at the elevation of approximately 16,500 feet with 45-degree ascent and sometimes 80-degree ascent all down till summit. We started our trek at 3 am early morning. After 3 kilometers of hard ascent, we reached Kalwa Vinayak at around 6 am. Just after Kalwa Vinayak, slow 9 starts. So we put our shoe spikes at Kalwa Vinayak and start trekking on the edges of snow. After 3 more kilometers, we reached Bhagwa Vasa base campsite, but we didn't stop and continued trekking. After a few breaks and some troubles, we somehow managed to reach at the elevation of approximately 15,500 feet and was not able to touch the summit. That was sad. That was really sad. Because of very soft snow on that 90-degree wall which we need to cross to complete the summit, we was unable to reach the summit. But never mind guys, we fall, we break, we fail, but then we rise, we win, we heal and we overcome. Warriors are not the ones who always win, but the ones that always fight. So we will fight back and complete our summit very soon. This was the toughest day for all of us, especially for me, because I suffered from acid attack many times during the trek, and at one moment I failed and refused to move forward, but our co members were awesome and we became a family after so many days. So they geared me up again and yet again I was ready to go. सांसें मेरी अब बेफिक्र हैं, दिल में बस कैसे ये पल हैं, बातें संभल जा रही हैं, पलकों में यूं ही हंसी है, मन में छुपी कैसी ये धुन है, और ख्वाहिशें उलझी किधर हैं, पैरों से जख्मी ज़मीं है, नजरें भी ठहरी हुई हैं, है रुकी हर घड़ी, हम हैं चले राह यहीं। ये मंजिलें हमसे खफा थी, इन परछाइयों सी बेवफा थी, बाहों में अब खोई है रातें, हाथों में घुली है ये शामें, ये सुबह
अभी कुछ दूरियां तो कुछ फासले बाकी हैं, अभी कुछ दूरियां तो कुछ फासले बाकी हैं, पल पल सिमटती शाम से कुछ रोशनी बाकी है। हमें यकीन है वो देखा हुआ कल आएगा ज़रूर, हमें यकीन है वो देखा हुआ कल आएगा ज़रूर, अभी वो हौसले वो यकीन बाकी है। पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदे, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदे, हर मैदान फतेह। That's a world record. Welcome back. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through, that I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day
without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. My sincere thanks to Kamal Dada and Dr. Vikas Mittal who helped me a lot to bring myself back. Whoa, wait. Special thanks to my new friends, the Tushar and the Shubham. Really, ये guys अगर ना होते तो शायद मैं इतना लंबा ट्रैक कभी नहीं कर पाता, because they made me laugh every time. They gave me courage when I was loose. They care always for me on the whole tour. Love you guys, really. Talk about family when family's all that we got. Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. So let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go. And every road you take will always lead you home. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it. So, day 5, 16th of June 2021. Patanachoni to Van, 19 kilometers approximately, via Gary Patial. The second toughest day of our tour. We started our trail at 8 AM in the morning. Only descend and descend and descend. Our knees were stiff badly. But again, thanks to Dr. Vikas Mittal who held us in every medical situations. Good morning. This is day 5. एंड जैसा कि आपको बताया था, पता नसली से हम निकल चुके हैं. और अरे भाई कहाँ जा रहा है? रुक. अरे बस ऐसे. अरे रुक यार भाई, ये इससे आपको मिला चुका हूँ. हाय शुभम यार. भाई शुभम यहाँ पता नसली से वो तो चार भाई आवाज लगा रहे हैं पीछे से. वही ले रहा हूँ लड़का. तो ये शुभम भाई यहाँ से पता नसली से हमारा स्टे कहाँ पर है आज? अभी हम लोग सुबह निकले 8:30 बजे पता नसली से, सारा ब्रेकफास्ट करके अभी हम थोड़ा बेदनी कुंड के लिए जा रहे हैं. बेदनी कुंड पे हम लोग थोड़े आधे घंटे के लिए रुकेंगे. वहाँ 2 मंदिर हैं, उन्हें एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे. और फिर वहाँ से हम निकलेंगे गैरोली पाताल के लिए. गैरोली पाताल, वहाँ हमारा नाइट स्टे होगा. और फिर तो रूपकुंड के ट्रैक के बारे में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा सर? रूपकुंड का ट्रैक पास एक्चुअली क्या है कि पिछले 3 साल से इस ट्रैक का बस ड्रीम ही था कि इसको करना है. बस इस बार तो करके कैसा लगा? बस ये समझो ड्रीम कम ट्रू. इससे ज़्यादा तो बस यही कह सकता हूँ कि मैंने शायद बहुत बड़ी अचीवमेंट अपनी, अगर आप ड्रीम्स को हासिल करते जाते हो तो वो आपकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती जाती है. एक और अचीवमेंट मेरे पोर्टफोलियो में ऐड हो गई है. एंड कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन या कोई एक्चुअली जो जिसने रूपकुंड नहीं किया है, जिस ट्रैकर ने, उनके लिए कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन या कोई? मेरा इंस्ट्रक्शन उनके लिए ये रहेगा, पहले इनको निकल जाते कोई नहीं, चलते रहो. मेरा ये इंस्ट्रक्शन रहेगा कि कम से कम आप 3 ट्रैक छोटे आप करें. आप थोड़े अपने पैरों को मतलब दिखाएं कि ट्रैक क्या होता है. फिर उसके बाद में जब आपको लगे कि आप रेडी हैं, क्योंकि ये इजी लेवल ट्रैक तो है नहीं, थोड़ा एडवांस है, मॉडरेट टू हार्ड है. हाँ जी. तो आपको थोड़े पहले कुछ ना कुछ ट्रैक का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा. बस यही था मेरा इंस्ट्रक्शन, और कुछ नहीं है. और तो बस हो जाता है सब. चलो ठीक है. राइट ब्रो. ठीक है सर, मिलते हैं बेदनी पर. ठीक है कमल सर का. चलो ये हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर लोधी इज मूविंग. ये हमारे प्यारे मांचू भाई
पहाड़ों में खो गया उससे मिले हुए अरसा हो गया। जैसा कि आप सब जानते हैं मैं जिंगल आलू करने वाला हूँ। बेदनी कुंड पहुंच चुके हैं। ये हमारे ग्रुप लीडर जो कि हाई करता है, कुछ बोलते ही नहीं है। बोल दो भाई, कुछ तो बोल दो। दादा अभी हम बेदनीकुंड पहुंच गए और इस सिचुएशन को देख के हम लोग या तो नेक्स्ट कैंप पे रुकेंगे, अदरवाइज हम नीचे डायरेक्ट वहां उतरेंगे। अजय भाई के मुंह से निकला कुछ। The lovely part of this trek was a Maggie break at Gary Patel, where we all enjoyed a lot and had a great time. And second, but the most adventurous part of the whole trekking tour was when it starts raining heavily and we were in the dense forest of the meadows of Gary Patel. Our one wrong step could result in some serious circumstances. The whole path was rocky with plenty of slippery leaves on it, but it was so beautiful and those mesmerizing views of the meadows just stayed on mind, and we passed those rocky and slippery paths easily and reached one at approximately 8:15 p.m. At last, we all in the group members sit together, placed a bonfire, साथ में मस्ती करी and we party hard all that night. Hope this video and the information will help you around and is useful in all aspects of trek to Roopkund. Thanks. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर आवर लेटेस्ट अपडेट्स. Thank you and love you all. Remain safe, keep wearing mask and please do your vaccination as soon as possible to fight against COVID-19. अब कैसे बताऊं इन शहरों का हो गया हूँ, इस भीड़ भाड़ में कहीं खो गया हूँ. मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया. मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया. उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया. मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया. तुम क्यों चले आते हो हर रोज इन ख्वाबों में, चुपके से आ भी जाओ एक दिन मेरी बाहों में. तेरे ही सपने अंधेरों में उजालों में, कोई नशा है तेरी आंखों के प्यालों में. तू मेरे ख्वाबों में, जवाबों में, सवालों में, हर दिन चुरा और सारे लोग पोंचो पहनते हुए बारिश में से लेकर जा रहे हैं. 2 घंटे पिकअप करता है किसी इवेंट से पहले. फिर आपको कितने मीटर डिस्टेंस रास्तों पे फूलों की एक चादर है। जब से मिले हो हमको बदला हर एक मंजर है। देखो जहाँ में नीले नीले आसमां तले रंग नए नए हैं
जैसे घुलते हुए, सोए से ख्वाब मेरे जागे तेरे वास्ते, तेरे ख्यालों से है भीगे मेरे रास्ते। क्या मुझे प्यार है कैसा खुमार है, क्या मुझे प्यार है कैसा खुमार है। संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। मुझको पहचान दो बाहुला, मैं जिंदगी की बाजी लगा के मौत से खेल जुआ, ना कोई डर है ना कोई परवाह, कौन मेरा दुश्मन हुआ, दुश्मन जो मेरा हो, रहता नहीं दुनिया में, बहुत ही खतरनाक हुआ, हर एक पल में चालाक तुझको कोई होश होश उस पर जो बन गया होश होश नहीं तेरा, नहीं मेरा कोई दोष होश मदहोश तू हर वक्त वक्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। आशिक है तेरा नाम मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है रेशम की डोर डोर से जान के आशिक मोर मोर
जीतता नहीं